नमस्ते एवरीवन। द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? द डिवाइन ग्रेस आप सभी का स्वागत करता है। द डिवाइन ग्रेस शुरू किया गया था इस एम के साथ कि हम जो ये अद्भुत नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी की और एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष। ज्योतिष अपने आप में ही एक संपूर्ण साइंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम सभी ऑकल्ट साइंस के नाम से भी जानते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर द डिवाइन ग्रेस आप सभी के लिए लाया है एक ऐसा वेबिनार जिसके माध्यम से इस अद्भुत विद्या के बारे में आप सभी जान सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर मिस्टर गोबिंद से। Gobind sir is a textile engineer from Manchester, UK. But later, he took up his family business in Amritsar. And after that, he came down to Bangalore and set up a silk industry. He made sure that his business became very famous and widespread among India. Not only he is a successful businessman, but a passionate astrologer. He is someone who has fallen in love with spirituality, who has fallen in love with astrology, who has fallen in love with the commendable knowledge of occult science. Please welcome with a round applause none other than a very genuine and a down to earth personality. Sir, thank you so much for taking out time from your busy schedule and guiding us to the path of astrology. Each and every participant here is keen to hear from you about how the mechanism of astrology work. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बता दीजिए कि सर का कैमरा एंड सर का वीडियो एंड ऑडियो सबको क्लियर है। सर आई रिक्वेस्ट कि आप सेशन आज का स्टार्ट करें। Namaskar. Thank you very much, Prachi, for your kind words and inviting me today on this forum to address about spirituality. You have been very gracious in saying your kind words to me. Thank you very much. So, before I start, we want to remember Lord Ganesha, जो हमारे विघ्न हरता है। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. So a very warm welcome to all of you who are joining here today on this webinar based on astrology. I saw in the chat some people want me to speak in Hindi, some people want to speak in English. So mostly I will be using both the languages so that it should be comfortable to all. Friends, as you know, astrology is such a subject which I think everyone is aware of. In one time or the other, everyone has gone to a astrologer to know of their problems. And astrology is a divine science. It has derived from our ancient Vedas like Rig Veda and Yajur Veda. And because it is a occult science, very old, and it has very certain values. And if the horoscope time, date, and place is given correctly, then astrologer can decode many things about the native. So I will tell you further how does it work, what is the mechanism of astrology in a very simple format. I will not go into the technicalities of astrology, but in a very simple form. So first of all, I just want to tell you that astrology works like a
metallurgy science, like uh, we come to know about the storms or earthquakes or cyclones by the help of metallurgy science, and they warn us not to come out of the house, or they warn to the fishermen not to go to the sea. Similarly, astrology reveals the present, past, future, present, and past. All the three things can be known through the astrology. It is such a wonderful science where we can come to know about all the details provided the horoscope is casted correctly, because here timing is very important, which I will explain you at the later stage. So in Hindi, astrology is called as Jyotish. Jyoti is a word of कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ज्योति प्लस ईश, यानी कि ये ईश्वर की लाइट है, लाइट फ्रॉम द गॉड. सो दिस इज वेरी fascinating subject which I have fascinated me from my young age, and I'm not a professional astrologer or a pandit, but by virtue of my fascination and interest in astrology, I am a self-taught man. I learned various books, I listened to various YouTube channels, and I happened to meet Divine Grace in the month of March when they were starting some course. I thought, okay, let me have some formal learning also. So I joined with them. So, as I told you, our Yajurved and Rigved, if you go there, you will find that astrology is mentioned there. So it is a definitely a very, very interesting science. Now the question is, when we make a chart, at the time, जैसे कहते हैं ना, देश काल और परिस्थिति, that is very important. A time is noted, and accordingly the chart is formed. And from reading the chart, any astrologer can tell us about our health, wealth, and ups and downs in life, our relationship with our children as well as our spouse, and like how fortunate we are or how unlucky we are. So all those things are mentioned in the horoscope, so which we can reveal from the chart. Now, I will tell you how this chart is formed. I will later on explain with a diagram and how does astrology works, that I will explain later on. But before that, I want to explain something about the spiritual knowledge as why a person comes on this earth. हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन है तो मृत्यु होनी है, मृत्यु है तो फिर जीवन हमें मिलेगा. ये तो सबने गीता में भगवान कृष्ण की वाणी से सुना हुआ है कि हमारे कई जन्म होते हुए हैं. जैसे अर्जुन ने जब पूछा भगवान कृष्ण, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, तुम्हें नहीं याद है, मुझे याद है. आप जो, जैसे शरीर कपड़े बदलता है, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है. लेकिन क्या होता है, जब हम अगले जीवन में जाते हैं तो हमें पुराने जीवन के संस्कार, हमारे कर्म, हमारे किया जोखा, लिखा जोखा, वो सब हमारे साथ जाता है, और बेस्ड ऑन दैट वी गेट ए न्यू बर्थ, और उसी के हिसाब से ही हमारा जो है जन्म होता है. और जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, डॉक्टर ने प्रेडिक्ट करा कि ये बच्चा इस समय पैदा होगा, लेकिन वो अपने से कभी थोड़े दिन पहले भी पैदा हो जाता है या एक दो दिन बाद पैदा होता है. क्यों? क्योंकि डेस्टिनी को पता है कि उसको उसी मुहूर्त में, उसी जगह पे, उसी टाइम पे पैदा होना है, जिसके हिसाब से उसका जो है वो अपने कर्मों का हिसाब किताब हो सके. तो ये इसीलिए टाइम फैक्टर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. तो हमारे को गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हमारे 5 कारण हैं पिछले जन्म के, जो हमें इस जन्म में लेके आते हैं. तो मिसाल के तौर पे, जैसे हमारी कामना, पिछले जन्म में हमारी कुछ अगर कामना रह जाती है, उसको पूर्ण करने के लिए हमें इस जीवन में आना पड़ता है. इसकी एक उदाहरण हमारे कहीं मैंने पढ़ी थी शास्त्रों में कि द्रौपदी ने विश किया था
कि मेरा पति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का हो, बहुत ही बल वाला हो, बहुत ही योद्धा टाइप का हो और बड़ा सुंदर हो और कलाकार हो। और उसी के हिसाब से द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए। युधिष्ठिर बहुत ही धर्मात्मा पुरुष थे, भीम बड़े बलशाली थे, अर्जुन बड़े धुरंधारी थे और ऐसे ही नकुल और सहदेव कलाकार और सुंदर थे। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपकी इच्छा अधूरी रह जाती है, उसके लिए आपको कामना के अनुसार इस जीवन में फिर भी जन्म लेना पड़ता है। ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या आ जाता है कि हमारी वासना। वासना का मतलब होता है कि हमारी अटैचमेंट, पोज़ेशन। तो कुछ पोज़ेशन अगर लेके हमारी मृत्यु होती है, कुछ अटैचमेंट लेके हमारी मृत्यु होती है, कोई वासना हमारे अंदर होती है, तो वो भी एक कारण बन जाता है। उसकी भी स्टोरी हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि एक बार की बात है कि एक हिरनी गर्भवती थी और उसके पीछे शेड लगा हुआ था। वो भागती हुई एक ऋषि के आश्रम से निकल रही थी, तो डर के मारे उसका प्रसव, वहीं पे वो बच्चा पैदा हो गया और वो छलांग लगा के मर गई। अब वो ऋषि ने देखा कि ये बेचारी हिरनी का क्या होगा। उन्होंने हिरण को जो है, बच्चे को है, पालना शुरू कर दिया। उनको पूजा पाठ भूल गया और वो हिरण की ही देख रेख करते रहते थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी वासना उस हिरण में थी। तो कहते हैं कि वो भर्तरी ऋषि उनका नाम था और उनको फिर बाद में हिरण की योनि लेनी पड़ी। तो जो है कामना है, वासना है। फिर तीसरा आता है हमारे कर्म। कर्म का तो व्याख्यान बहुत अच्छा भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है। बोलते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कि हम जिस प्रकार से जो भी कर्म करते हैं, हमारे कर्म जिस भावना से किए जाते हैं, तो उसका फल भोगने के लिए तो हमें संसार में फिर भी आना ही पड़ता है। कर्म कभी खाली नहीं जाते हैं, कर्म हमारा जन्म जन्मांतरों तक पीछा करते हैं। इसकी भी एग्जाम्पल महाभारत में दी गई है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो और भगवान कृष्ण ने कहा चलो भीष्म पितामह के पास चल के आशीर्वाद लो। पांडवों को लेके वहां पे पहुंचे और सब बातचीत होने के बाद भीष्म पितामह ने पूछा कि भगवान, मेरे 100 जन्म से मुझे याद है कि मैंने तो कोई पाप किया नहीं है, फिर मुझे ये किन पापों की सजा मिली है कि इसने बाणों से मुझे, मेरे शरीर को भेद दिया गया है। भगवान कहते हैं, भीष्म पितामह तुम एक काम करो, मैं चक्षु देता हूँ, तुम 101 जन्म में जाओ। तो वहाँ क्या देखते हैं कि वो एक युवराज है और भ्रमण के लिए बाहर निकले हैं और जंगलों से जा रहे थे, तो रास्ते में एक सांप उनको क्रॉस कर रहा था। अब उन्होंने क्या किया, रुक सकते थे, सांप को जाने देते, लेकिन उन्होंने क्या कर्म किया, अपने तीर से सांप को हटाया। वो उड़ के एक कांटेदार झाड़ियों में गिर गया, जिससे सारे कांटे उसके शरीर को चुभ गए और बेचारा लहूलुहान होके वहीं पे मर गया। तो बोलते हैं कि भीष्म, तेरे उन कर्मों की सजा है कि आज तुम्हें ये मतलब है कि वानों से पीड़ना पड़ा। तो उन्होंने हैरान होकर पूछा कि मुझे 101 जन्म का दंड आज क्यों मिला? बोलते हैं कि क्योंकि 100 जन्म तुमने कोई पाप नहीं किए, और जब तक हम पुण्य करते रहते हैं तो हमारे जो कोई भी पाप कर्म होता है ना, वो पोस्टपोन होता रहता है। बोलते हैं इस जन्म में तुमने पाप किया है। क्या पाप किया है? तुम चाहते तो धृतराष्ट्र को आदेश दे सकते थे और ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया है, अपनी पावर को, अथॉरिटी को नहीं यूज किया है। इसी वजह से आज तुमने ये जो पाप किया है, इसलिए वो वाला जो तुम्हारा कर्म था गलत वाला, उसकी सजा तुम्हें आज मिल रही। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करते रहो, फल की आशा न रखो, क्योंकि फल जो है वो हमें फिर बांधित कर देगा। अब चौथा आता है कर्ज। दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि हम कर्ज वापस नहीं करते, किसी से कर्ज लिया तो कर्ज नहीं देते हैं। हमेशा याद रखिए कि कर्ज भी हमारा पीछा करेगा, वो भी उसको चुकाने के लिए भी आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा, जिसका कर्ज आपने लिया उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको पता नहीं है कौन है ये, तो कई बार बहुत लोग कहते हैं सर
मेरे से वो छीन लिया, किसी ने ऐसा कर लिया। तो ये क्या है? ये वही है जो आपने उनसे कोई कर लिया होगा, उन्होंने दूसरे रास्ते से आके आपसे छीन लिया और आपका हिसाब-किताब बराबर कर दिया। और इसके लिए कर्ज रहित होके हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किसी से कर्ज लेके किसी की चीटिंग ना करें। और 5वां आखिरी आता है पुण्य। हमारे पुण्य भी हमारे साथ ही जाते हैं, जो हमने पुण्य अच्छे कर्म किए हैं। और उन पुण्यों का भोग भोगने के लिए हम इस जन्म में जन्म लेते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े ही अमीर होते हैं, कुछ लोगों को बिना मेहनत किए सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ लोग को बहुत मेहनत करती है पर कुछ प्राप्त नहीं होता। तो क्या है? क्योंकि उनके वो कर्म हैं जो पुण्य वाले या पाप वाले हैं। बोलते हैं परोपकार ही पुण्यम, पापम पर पीड़ितम। तो क्या करना चाहिए? हमें परोपकार करना चाहिए। परोपकार कैसे हो सकता है? परोपकार तन, मन और धन तीनों से किया जा सकता है। हम किसी को अगर धन नहीं दे सकते तो मन दे सकते हैं, नहीं तो तन दे सकते हैं। पर हमें जीवन में एक उद्देश्य ये रखना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और हमें जो है, नहीं तो क्या होता है जिनको बहुत कष्ट होता है जीवन में, वो फिर ऐसे एक शायर है लिख दिया कि ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने दुःख देखे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो एस्ट्रोलॉजी की फ़िलॉसफ़ी मैं आपको पढ़ाऊँगा बताऊँगा, तो कुछ भी फ़िक्स नहीं है। ये चेंजेस हो रहे हैं, हर हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी। किसी शायर ने ये गाना लिखा है ना? और कहीं ने लिखा है कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। ये सत्य चीज़ें हैं और हमारी एस्ट्रोलॉजी में आपको मैं समझाऊँगा कि ये कैसे काम करती हैं। और दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपकी अ, अभी कठिन परिस्थिति है तो वो शुभ होगी। और अभी थोड़ी-सी जो अच्छी जा रही है उसमें कहीं न कहीं पे कोई अड़चन तो आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो और तो चलिए इसके आगे हम चलते हैं। प्राची जी एक स्लाइड लगाइए पहली वाली। हाँ जी, ये देखिए, ये है चार्ट जो यूनिवर्स में हमने यूनिवर्स को एक ड्राइंग के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाया है कि यूनिवर्स कैसे काम करती है और हम कैसे जन्म लेते हैं और हमारी जो है कुंडली कैसे बनती है। ये आप देख रहे हैं कि ये प्राची थोड़ा कर्सर में ना नक्षत्रों में दिखाओ, ऊपर नक्षत्र जो है ना ये वाले। देखिए, ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी से लेके भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, लास्ट में रेवती, ठीक है? और एक नक्षत्र के वापस 4 पद हैं, पाद बोलते हैं इसको या मतलब उसकी डिग्री बोलते हैं। अच्छा, और नीचे जो है इनके जो थर्ड सर्कल है वो है राशियों का। आप देख रहे हैं एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, लियो है, ऐसे पाइसिस। ये राशियों से तो सभी वाकिफ हैं, सबको पता है कि ये क्या राशियां होती हैं। और इन्हीं के बीच में जो यहाँ पे नहीं विजिबल हैं वो हमारे प्लैनेट घूमते हैं। प्लैनेट भी इसी के अंदर चलते रहते हैं। और ये जो चक्र है ये सतत अनस्टॉपेबल चलता ही रहता है। हम बीच में कहीं ना कोई एक पॉइंट पे जब पैदा होते हैं तो ये सर्कल हमारे लिए वही रुक जाता है और वो ही हमारी कुंडली बन जाती है। मिसाल के तौर पे जो एरीज राशि है वो सब जानते हैं कि ये प्रभावित होती है 14 अप्रैल से 14 मई में, जब सूर्य एरीज राशि में होता है। तो ऐसे ही अगले महीने जब 14 मई आती है, 14 जून तक फिर तारस राशि आ जाती है सूर्य के हिसाब से। अच्छा, क्या है ये जो 12 राशियां हैं इनकी 30-30 डिग्री है, टोटल सर्कल 360 डिग्री का है। तो 30 डिग्री जो है ना, ये हर राशि हर 2 घंटे बाद अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे कोई सवेरे 6 से 8 और अप्रैल का महीना है तो उसकी पहली राशि एरीज होगी और 2 घंटे के बाद वो टॉरस बन जाएगी, 2 घंटे के बाद जेमिनी बन जाएगी। ऐसे हर महीने सूर्य की पोजीशन देखते हुए अर्ली मॉर्निंग जो
जिस महीने में सन होगा वो हमारी फर्स्ट राशि सुबह 6 बजे बनेगी, और उसके हिसाब से 24 घंटे में जब भी जन्म होगा वो हमारी उस हिसाब से असेंडेंट राशि बन जाएगी। तो ये 12 राशियों के भी अपने अपने स्वभाव है। 12 राशियों में जैसे एरीज 1 नंबर बताई गई है और 8 नंबर स्कॉर्पियो है। 8 नंबर स्कॉर्पियो है। इन दोनों के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। ऐसे ही 2 नंबर टॉरस और 7 नंबर लिब्रा। ये लिब्रा, ये दो राशियों की जो मालिक हैं वो वीनस है। ऐसे 3 नंबर 6 नंबर जैमिनी और वर्गो में अपना आपका बुध आ जाता है इसका मालिक। कैंसर का मालिक चंद्रमा है। लियो का मालिक सूर्य है। और लास्ट में जो हमारा जो है 9 नंबर 12 नंबर सैगिटेरियस और पाइसिस का जुपिटर है। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का शनि है। राहु और केतु को कोई अधिपत्य नहीं दिया गया है क्योंकि उसको छाया गया है, माना गया है। अब देखिए ये काम कैसे करते हैं, क्या होता है। क्योंकि जैसे हर राशि का एक स्वभाव है। एरीज राशि को जो है ना फायरी साइन कहा गया है। इसका मतलब वो जो भी बंदा एरीज राशि लेके पैदा होगा उसमें थोड़े से फायरी नेचर होगी, गुस्से वाली नेचर होगी, डोमिनेंस होगी। वो उस हिसाब से काम करेगा। ऐसे ही टॉरस में जाएंगे तो टॉरस का जो बंदा है वो अर्धी राशि है। जेमिनी एरी राशि है। कैंसर वाटरी राशि है। ऐसे ही एरीज इसी तरह से फिर चार आएंगी। ऐसे ही एरीज जो है वो मूवेबल साइन है। टॉरस फिक्स साइन है। जेमिनी ड्यूल साइन है। ऐसे बाकी तीन होंगे। और फिर धर्म अर्थ काम और मोक्ष आ जाता है। एरीज में धर्म देखते हैं। टॉरस में अर्थ देखते हैं। जेमिनी में काम देखते हैं। कैंसर में मोक्ष देते हैं। फिर ये ऐसे ही साइकिल रिपीट होगा। तो कहने का मतलब है कि ये राशियां अपने हिसाब से, और हर राशि स्वतंत्र नहीं है, ये भी नक्षत्रों से कंट्रोल हो रही है। जैसे एरीज के ऊपर 2 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और पार्ट ऑफ कृतिका। अब आप ऊपर से देख रहे हैं कि एक एक नक्षत्र के भी चार चार पाद हैं और उसके भी इन्फ्लुएंस करने के लिए ग्रह हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र को केतु करता है, भरणी को वीनस करता है। लेकिन अश्विनी का जो पहला पाद आएगा, पहला चरण जिसको बोलते हैं, तो उसको भी केतु उसको फिर जो है हमारा यही आपका एरीज राशि कर रहा है, यानी कि मंगल कर रहा है, उसके बाद शुक्र कर रहा है। और ऐसे ही मतलब ये है कि ये जो है एक दूसरे, अभी आप देखिए कि now this circle is moving constantly, and if you calculate every 4 minutes, it has moved 1 degree, because there are total 360 degree, and we have 1440 minutes in 24 hours. So it will rotate with a speed of 1 degree within 4 minutes. Why time is important? That is what I am going to explain you. Suppose if you have a difference of some 7-8 minutes in your birth chart, So your voice is not audible. I guess there's some network issues. सर जो है अभी rejoin कर रहे हैं. Just give us a minute.
Hello. Am I audible, please? Yes, sir, audible. I'm so sorry. There is a current issue, and suddenly the electricity has gone, and I'm cut off with the Wi-Fi. I was on the laptop, so now I have opened my phone. I'm talking from the phone. So I was telling about the nakshatras as well as rashis. So now, how does it work? As I told you, time factor is very, very important. Now, this circle is rotating like 1 degree every 4 minutes. And if you notice that one Rashi has 30 minutes, so it has 2 hours, 120 minutes. In 120 minutes, you can see that 13 minutes, 27 minutes goes to one nakshatra, another 27 minutes goes to other nakshatra, and 6 minutes to the third nakshatra. So suppose there is an error of few minutes also. So your nakshatra padha will change. Accordingly, graha influence will change. That is the reason we have to see the time is very correctly casted. So now I'll tell about the planets. Prachi ji, दूसरा लगाना, second chart. Yeah. Now, friends, you can see there are each Rashi has their own lordship, which I explained earlier. Now, what happens that uh, every Rashi has a certain lord and who have their influence on a native. So now we'll see the third chart. Third chart lagaiye, please. Now you can see this horoscope. As I explained you in the that circle, when a person is born, and at that time, wherever is the circle, it will stop there itself and form a chart like this. Like this chart shows that number 6 is a Kanya Rashi, that is Virgo sign, and a person's ascendant Lord becomes Kanya. And Lord is Mercury. So what happens now? The influence comes on this a person about Mercury. Generally, when we calculate, now we must understand that how this chart works. Whenever there is a whatever is the first house which comes in the chart is telling about yourself, like your personality, your appearance, your character, whatever relating to you will tell you, because you are born at this time and you will have all the characteristics based on the Rashi as well as the Lord of that Rashi. So we can see here that Lord of this Rashi, Mercury, is also sitting here at 7 degree. So that means a person is very intelligent because Mercury has influence on itself. So now what happens when you are born and immediately you cry? So second comes speech. So the second house we come to know about a person is his speech. Then he has born to certain family, and we come to know about his family from the second house. Now, what happens after that? He grows up little bit and he will start walking, and meanwhile he will have younger brother. So we see the younger sibling and his strength from the third house. Now, since you are born and you have siblings, so then becomes the fourth house get active, where you have a mother, you have a house, you have all the comforts in the house, and you love to enjoy all those facilities. So fourth house will tell us about the mother and vehicle and all the comforts in life. Now comes the fifth house.
Fifth house is about our desires, about our education, about our children. Then comes the sixth house, where see when you are grown and you have educated, then you have certain friends and enemies, and you have some borrowing or debts, or you have some disease. So sixth house will tell us about all those. Now you are ready to get married. So seventh house comes to the existence where we will come to know about your spouse, about your family, with your wife. All those things will come from the seventh house. So this is the cycle from first to seventh house. Now comes the eighth house, because we have come on this and one day we have to die also. So this eighth house is the uh, house of death, house of secrets, house of sorrows. So we come to know about this. Now comes the ninth house, that is the dharma. When we come on this earth, we do some good deeds that will come to know from the ninth house. Ninth house is also, it is presenting the father and our distant foreign journey, long journeys, and uh, about our good deeds. Everything comes from the ninth house. Now comes the 10th house. अच्छा ठीक है जी, आपको हिंदी में चाहिए, ओके मैं हिंदी में बात करता हूँ. अच्छा, आई होप ऑल आर कंफर्टेबल विद हिंदी. ओके, सो अभी क्या होएगा कि जैसे नौवां घर आया तो धर्म कर्म, धर्म हो गया, पिता का स्थान हो गया, हमारी यात्राएं हो गई. अब आ गया आपका 10th हाउस. 10th हाउस क्या है? आपका कर्मा. आप कुछ कर्म करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, और आपकी कोई पोजीशन होगी बाजार में, रेपुटेशन होगी, तो वो सब चीजें हमें 10th हाउस से पता लगेगी. अब जब हम बिजनेस करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी होगा और कहीं ना कहीं हानि भी होगी. तो 11वां घर जो है हमारा वो लाभ का है, और 12वां घर जो है वो नुकसान का है. तो 11वें घर से हम अपना लाभ देखेंगे, हमारी जिंदगी में क्या क्या गेन लिखे हुए हैं, हमारे इसमें बड़े भाइयों का भी पता चलता है. और 12वें घर से जो है वो हमारे खर्च कहाँ होते हैं, और हमारी विदेश यात्राएं भी इससे पता चलती है, हमारे दुख, सौरो, जेल, और ये सब चीजें हमारे को 12th हाउस से पता लगती है. सो मतलब ईश्वर ने ये चार्ट को बड़े ही सिस्टेमैटिक ढंग से बनाया हुआ है. आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आपका कोई क्वेश्चन मान लीजिए फैमिली को लेके है, आपकी वाइफ को लेके है, वो जाके सीधा आधवा 7वां घर देखेगा कि 7वें घर में किसका इन्फ्लुएंस है, इसको कोई अच्छा ग्रह देख रहा है क्या, और इसकी प्लेसमेंट में इसको कुछ खराब ग्रह की दृष्टि तो नहीं है. देखिए हमारे जो ग्रह है ना, इनका भी नेचर है. जैसे कुछ ग्रह सौम्य होते हैं और कुछ ग्रह क्रूर माने गए हैं. मिसाल के तौर पे राहु केतु शनि मंगल को क्रूर स्वभाव कहा गया है, और सूर्य दोनों तरफ के फल देता है. बच्चे चंद्रमा, शुक्र, बुध, बृहस्पति जो है ये सौम्य ग्रह कहेंगे है, क्योंकि जो सूर्य है उसको जो है आत्मा का दर्जा दिया गया है, पिता का दर्जा दिया गया है, राजा का दर्जा दिया गया है. चंद्रमा जो है उसे माता का दर्जा दिया गया है, रानी का दर्जा दिया गया है. ऐसे ही मंगल जो है उसको सेनापति का दर्जा दिया गया है, बुध को युवराज बनाया गया है, गुरु को देवगुरु, और शुक्र को दैत्यों का गुरु. शनि जो है वो न्यायाधीश हैं, राहु केतु उनके जो है वो उनके बारे में शनि की और मंगल की पालना करते हैं. तो क्या होता है कि ऐसे हर ग्रह का जो जो हमारे जिस जिस घर में रिलेशन रखता है, उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में प्रभाव आता है. हम उसे उस ग्रहों के हिसाब से प्रभावित होते हैं. इसलिए क्या है कि, और इसकी फिर क्या होती है, कोई महादशा भी आ जाती है. हर ग्रह अपने अपने एक टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाता है, उसकी एक अलग ही थ्योरी है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. तो इसलिए क्या होता है कि जब आपके शुभ ग्रह शुभ घर की महादशा चलेगी तो आपको उसमें फायदा होगा, आपको सुख मिलेगा. और किसी खराब ग्रह की महादशा जब आएगी तो आपको कष्ट होंगे, आपके नुकसान होंगे,
और कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, हमें उस समय घबराना नहीं चाहिए। कारण ये है कि ये जो चार्ट बना है, ये हमने तो बनाया नहीं है। हम अपनी मर्जी तो इस दुनिया में आए नहीं है। कोई ना कोई कारण रहा होगा हमारा जीवन में आने का, जो कि मैंने आपको 5 रीज़न बताए हैं पहले आने के लिए। तो इसमें कोई हमारा दोष नहीं है, हमें उसके लिए व्यथित नहीं होना चाहिए। और ये काल का चक्र घूम रहा है। वो जो साइकिल हमने दिखाया है, जो आपके लिए खड़ा हो गया, तो आज भी चल रहा है। और बेस्ड ऑन आपके मून के साइन के मुताबिक, जैसे इसका मून साइन जैसे जो चार्ट दिखाया है, ये 5 नंबर में है। तो जब कभी भी शनि जो है वो 2.5 साल हर खाने में चलता है, सूर्य जो है हर महीना चलता है, शुक्र और बुध हर महीना चलते हैं, मंगल 1.5 महीना चलता है, राहु और केतु 1.5 साल चलते हैं। तो उन्होंने भी अपना प्रभाव हमारी कुंडली के ऊपर हमारे चंद्रमा के हिसाब से हमें बताना ही है। तो उसके हिसाब से हमें उसको देखना है कि वो हमें क्या कर रहा है। और एक एस्ट्रोलॉजर जब ये चार्ट ठीक बना लेता है, तो उसके हिसाब से फिर देन ही इज एबल टू प्रेडिक्ट अबाउट योर प्रॉब्लम्स, के आपकी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, ये बताने की बड़ी पद्धतियां हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं। कोई जेमिनी पद्धति है, और कोई आपकी वैदिक साइंस है, और कोई लाल किताब है, और कोई प्रश्न कुंडली है। बहुत बहुत इसकी अलग अलग पद्धतियां हैं उसके, लेकिन रिजल्ट सबके ऑलमोस्ट एक जैसे ही आते हैं। और ये जो एक जनरल विश्लेषण है, और मेरा कहने का एक ही बात है। मान लीजिए आपके 7वें घर में अगर कोई क्रूर ग्रह आके बैठ गए हैं, जो आपकी स्पाउस को थोड़ा-सा, अगर मान लीजिए टेम्परामेंट ज़्यादा ऐसा कर देते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। उसको देखना चाहिए कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकता हूँ। क्योंकि हम कर तो सकते नहीं है, लेकिन आजकल के ज़माने में क्या है, बच्चे इंडिपेंडेंट है, वो कहते हैं मुझे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं है, और दे गो फॉर डाइवोर्स। और डाइवोर्स के हिसाब से भी हमें पता लग जाता है आपकी कुंडली से कि ये स्मूथ मैरिज है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे ही आपके घर को लेके आपके घर में अशांति रहती है या शांति रहती है, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि ये सब टेक्निकल डिटेल्स है व्हिच आई एम नॉट हियर टू टीच एस्ट्रोलॉजी। आई हैव कम हियर टू एक्सप्लेन द जनरल थिंग्स इन एस्ट्रोलॉजी, के जनरली हॉरोस्कोप काम कैसे करता है, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो किसी बात को लेके प्रेडिक्ट कैसे करता है। मैं आपको वो चीज़ें बताने के लिए यहाँ पे ये थोड़ा-सा मैंने इनिशिएटिव लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि हमने समझा कि हमारे पुराने जीवन से कनेक्टेड ही हमारा ये जीवन बनता है। तो इस जीवन में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस जीवन में कोई ऐसी प्रतिक्रिया न करें जिससे हमें अगले जीवन में फिर कष्ट उठाना पड़े। लोग बहुत कहते हैं, अरे अगला जन्म किसने देखा है, पर लेकिन ये तो सत्य है। हमारे गीता में जो है भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि जो भी है हमारे जीवन में, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे पुराने प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है। बोलते हैं, पहले बना प्रारब्ध और पाछे बना शरीर। तो क्या मतलब है कि हमारे कर्मों ने, पिछले जन्म के कर्मों ने पहले ही निर्धारित कर दिया हुआ है कि हम कितना जीवन जिएँगे, कैसा जीवन जिएँगे, और हमारे को किस प्रकार की लाइफ मिलेगी, खुशी की मिलेगी या दुःख की मिले। लेकिन चूँकि जैसे मैंने आपको बताया, ग्रह गोचर अपने चलते जा रहे हैं, तो कभी भी स्थिरता नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। आज अगर खराब ग्रह की दशा चल रही है, तो अच्छे ग्रह की दशा भी आएगी। तो हमें क्या करना है, पेशेंस रखनी है। लेट द स्टॉर्म पास अवे। सो ज्योतिष इसी तरीके से, द एस्ट्रोलॉजर हेल्प अस टू लेट अस नो दैट व्हिच पीरियड इज गुड फॉर अस, व्हिच पीरियड इज बैड फॉर अस, and accordingly there are certain remedies also. There are, that is a very long topic and chapter, that how can we do remedies. But one thing you always remember, remedy is not a permanent solution. It does not give us any benefit till the whole life. So this is momentary.
and it has certain time. So ultimately, it is your own understanding, your own patience, that how you live your life. Because life is something either you fight or flight, live or leave. Otherwise, there is no choice. So it is better when we understand why do we have this kind of suffering. Nowadays, a lot of people are doing past life regression. If you can see on the YouTube, there are people who have gone under past life regression. They are giving their experiences. If you see there, everything in astrology is a cause and effect. Means we have done something wrong in our past and we have to reap the results. क्योंकि वो हो नहीं सकता कि आप जो है उसके लिए अछूते रह जाएं। ये तो आपको होना ही है। और हमारे शास्त्र में कहा गया अवश्यम भावी भावानाम, यानी कि जो चीज परमात्मा ने लिखी है वो होके रहनी है। लेकिन कहते हैं भावी बेट सके त्रिपुरारी, तो कि भगवान शंकर जो है वो ऐसे एक देवता है, वो हमारी इसको मिटा सकते हैं। जैसे मंत्र का सहारा हम ले सकते हैं कि कोई ग्रह हमारे लिए अनुकूल नहीं है तो उसका कौन सा मंत्र जपा जाए। मंत्र के लिए कहा गया है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक बहाल के, यानी कि मंत्र जो है इतनी बड़ी शक्ति है, तो वो हमारे जितने भी मस्तक के ऊपर कोई हमारे पुराने कर्मों के मुताबिक कुछ भी लिख दिया गया है, उसमें ताकत है, वो उसको मिटा सकती है। और सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो मंत्र की है, उसके बाद जो आती है वो स्टोन की आती है। तो ऐसे-ऐसे जो लर्नड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपको इस समय कौन से ग्रह का क्या प्रभाव है। और आप ये देख रहे हो कि हमारे ऊपर कितनी चीज़ें काम कर रही हैं। एक नक्षत्र लॉर्ड है और दूसरे आके हमारे राशियाँ हैं, तीसरे हमारे आके ग्रह हैं। ओके? तो और जैसे हमारे जो हैं इसमें क्या है कि जिस सारे घरों में जैसे मैं आपको बताया, तो आपने नोट किया होगा कि जो छठा, 8वां और 12वां घर है ना, इसको अच्छा नहीं माना जाता। और कोशिश ये हो, अगर ये अपने अगर मान लीजिए कि छठे 8वें बार में अगर कोई ग्रह ना हो, वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि ये ग्रह हमारे जीवन में जो है थोड़ी विघ्न बाधाएं लेके आते हैं। तो सबसे बड़े जो अच्छे हैं वो हमारा जैसे केंद्र के घर हैं 1, 4, 8, 12, या त्रिकोण के भाव हैं 1, 5, 9। तो इन ग्रहों के जो जब दशाएं महादशा इनके लॉर्ड की चलती हैं तो वो हमेशा हमें शुभ फल देती हैं। लेकिन जो अगर अशुभ ग्रह हैं जैसे कि राहु केतु, तो ये अपने आप में कुछ ना कुछ अड़चने लेके ही आते हैं, उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा यही है कि हम करें। और हमारे व्यवहार में भी हम जो है अपने ग्रहों का परिधान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसका सूर्य खराब है, तो उसे कभी भी अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को पिता कहा गया है। और अपने पिता का सम्मान करे, अपने जो है बड़ों का सम्मान करे। और अगर चंद्रमा खराब है, तो हमें जो है माता की सेवा करनी चाहिए, माता से आशीर्वाद लेने चाहिए। अगर मंगल खराब है, तो हमें अपने भाइयों के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। बुध खराब है, तो बहनों, बुआओं के साथ हमें रिश्ता अच्छा बना के रखना चाहिए। गुरु खराब है, तो गुरु के लिए हमें अपने गुरुओं का पूजा-पाठ, उनका सम्मान, वो सब करना चाहिए। शुक्र खराब है, तो इन जनरल स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। शनि खराब है, तो शनि जो है वो न्यायाधीश है, तो हमें जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, उनसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी अपने एम्प्लॉयी से बदतमीज़ी करता है, दुर्व्यवहार करता है, क्रोध करता है, तो शर्तिया शनि उसका खराब हो जाता है। और शनि जो है वो कहता है कि मैं क्या बोलते हैं, न्यायाधीश हूँ और मैं तो न्याय करता हूँ, मुझे दूसरा कुछ नहीं पता। इसने ये कर्म किया है तो इसको ये अन्याय किया है, तो इसको न्याय तो मुझे देना ही है। और जो राहु केतु है वो उसके गण हैं, वो तो उनका तो यही काम है। तो हम अपनी दिनचर्या में भी, अपने रेगुलर जीवन में भी
हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमें इन ग्रहों से शांति मिल जाए। अच्छा, किसी को मान लीजिए अपने जो है धन को इम्प्रूव करना है, तो उसको अपना दूसरे ग्रह का लॉर्ड जो है, उसके मंत्र का जाप करे और जो 9th लॉर्ड है भाग्य का, उसका लॉर्ड लॉर्ड को ध्यान करे तो या उसके रिलेटेड चीज़ों का दान करे। तो उससे क्या होएगा, उसको जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो ये जनरल चीज़ें हैं, क्योंकि डिटेल में जाने के लिए तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है कि कैसे काम होता है, क्या होता है, कौन-सी डिग्री, कितने डिग्री, कितना एंगल, किसका एस्पेक्ट किसके ऊपर है, क्योंकि हर ग्रह का एक एस्पेक्ट होता है, उसका एक उच्च स्थान होता है, एक नीच स्थान होता है, एक उसका अपना घर होता है, एक उसके दुश्मन का घर होता है। तो ये बहुत ही टेक्निकल डिटेल है, जो कि जिसके चला जाए तो उसके हिसाब से जो है मतलब है कि उसको मिलता है। मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सिखाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक आउटलाइन देने आया हूँ आपको कि जनरली एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो जैसे कि मैंने बताया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई भी इंसान इस दुनिया में स्वतंत्र नहीं है, समझे? We are definitely not independent. We are controlled by our planets. Planets has their total influence on us each and every time. जैसे आपने देखा होगा कि आजकल एस्ट्रोलॉजर बताते हैं जी इस समय शनि जो है वो मकर राशि में है, वक्री का है, या जी बृहस्पति उसके साथ था। तो सब लोगों ने ये कारण बताया कि मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है और शनि वक्री है, शनि के बृहस्पति इकट्ठा होने से ये कोरोना फैला है। तो ऐसे हर ग्रह का कहीं न कहीं किसी राशि में कोई इफ़ेक्ट आता है। ये जो सौरमंडल घूम रहा है ना, ये हर रोज़ घूम रहा है। हर 2.5 साल बाद शनि की पोज़ीशन चेंज होती है, हर 1.5 साल बाद राहु केतु की पोज़ीशन चेंज होती है और हर 1 साल के बाद बृहस्पति की पोज़ीशन चेंज होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ट्रू साइंस है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि ये ऑल बकवास है। इट इज़ अ वेरी, वेरी ट्रू साइंस, ओनली इट डिपेंड्स, सपोज़ astrology is not able to decode your future, the reason could be two. One is that your timing is not correct. That it has cast, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 मिनट के डिफरेंस में भी आपकी कुंडली की जो है लगन की स्थिति बदल सकती है और उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा फ़र्क हो सकता है। तो समय का बहुत ज़रूरी ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात है कि हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी-अपनी स्टडी है, नॉलेज है, वो कितनी उसने एक्सपीरियंस किया है, कितना उसको इसके ऊपर जानकारी है। तो ये जनरल ये चीज़ें हैं जो हमारे को हमारे जीवन पे इम्पैक्ट करती हैं। हमारे जीवन पे ये बताती हैं कि हमारा जीवन इन जनरल कैसा जाएगा। तो और दूसरी बात ये है कि ईश्वर की तरफ से हम अपना जो श्वासों की गिनती है वो लेके आए हैं, वो उतनी ही है जितनी हमें ईश्वर ने प्रदान की है। तो इस जीवन में जब हमने कूच करना है, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, बोलते हैं मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख़्याल झूठा है। तो हमें हमेशा अगर समझिए हमारे किसी अपने नियर डियर की मृत्यु हो जाती है, तो हमें मतलब थोड़ा-सा दुःख होगा, लेकिन हमें उसका शोक नहीं मनाना चाहिए, ऐसा गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। क्योंकि ये तो चलता ही चला आ रहा है सर्कल। किसको पता है कि पिछले जन्म में हमारी पत्नी कौन थी या हमारे बच्चे कौन थे या हमारे पिता कौन थे, माता कौन थे। और ये हर जन्म में हम अलग-अलग जन्म ले रहे हैं, अलग-अलग हमारे रिश्ते बन रहे हैं। क्योंकि जब हम इस जन्म में देखते हैं किसी से हमारी बड़ी आत्मीयता हो जाती है, बड़ी अच्छे से रिलेशनशिप एकदम मिनट में बन जाता है, तो समझ लीजिए कि उसका हमारा कोई पुराना संबंध है। ऐसे कभी हो नहीं सकता। कोई गाना भी था ना किसी का, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूँ ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो कहने का मतलब ये है कि ये
एस्ट्रोलॉजी जो है हमें बताती है हम पीछे कहाँ से आए हैं, वो 5वां घर बताता है। हम कहाँ जाएँगे, वो हमारा 12वां घर बताएगा, एग्ज़िट, क्योंकि ये मोक्ष का द्वार भी है। तो हमें ये भी पता लग जाता है, अगर 12वें घर में किसी का केतु है या बृहस्पति है, तो हम समझते हैं कि ये बंदा शुभ कार्य करने वाला है और इसका मोक्ष होने का पूरा चांसेस हैं। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी इज़ सच अ चार्ट वेयर यू कैन रिवील each and everything in a person's native's qualities, his character, his appearance, his behavior, his family life, his happiness from children or happiness from spouse or happiness from business partner, and his losses and gains. So I think it is a very, very valid subject, and only thing is that एक बात हमें ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम कुछ बदल नहीं सकते हैं और ज़्यादा करके इस झांसे में नहीं आए कि हम ये रेमेडी कर ले, वो रेमेडी कर ले, ये यज्ञ करवा ले, वो कर ये कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ईश्वर को प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करिए, उससे जो है वो ये कृपा माँगिए ताकि हमारा जो जीवन है वो सफल हो सके। जैसे बोला कि हमारे जो 3 ईश्वर हैं, 3 भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने पैदा किया, विष्णु जी ने पालनहार किया और शिव जी ने संहार किया। तो हमें जैसे अगर जीवन में अच्छा जीना है तो विष्णु जी को प्रार्थना करें, मृत्यु अच्छी चाहिए तो भगवान शंकर से प्रार्थना करें। तो इस जीवन में हमें पुराने जीवन को सीखते हुए ये शिक्षा लेनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का एक ये मतलब है कि हमें ये जानना है कि हमारा हॉरोस्कोप बना क्यों है? हम इस वातावरण में है क्यों? और जो 2 भाई एक ही घर में पैदा होते हैं, एक जो है बहुत आगे निकल जाता है, दूसरा पीछे चला जाता है, क्यों? क्योंकि वो तो एक ही पिता की संतान थी, एक ही घर में पैदा हुए, फिर क्यों हो गया? क्योंकि सब भाई अपने-अपने कर्म लेके आते हैं। सबके अपने-अपने एक जो है उसके पुराने पुण्य अर्जित किए हुए हैं, वो पुण्यों को लेके ही हमें पैदा होते हैं। लेकिन कुंडली से रिवील हो जाती हैं ये सब बातें कि भैया हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ज़िंदगी में आगे चल के क्या होगा। और इसके लिए ज्योतिष की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने तो एक सिंपल तरीके से जस्ट आई हैव ट्राइड टू हाइलाइट हाउ द एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, द मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इट प्योरली गोज़ ऑन द आपका जैसे बोलते हैं ना सोल, बॉडी एंड माइंड। हमारी जो सोल है वो सन है और बॉडी है लॉर्ड ऑफ द लग्ना एंड माइंड है मून। तो हमारी 3 चीज़ें ही हमारे जीवन में प्रभावित करती हैं। तो और मून जो है वो कहते हैं ना चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो मन जो है हमारा क्यों व्यथित व्यथित होता है, क्यों स्टेबल नहीं रहता है? आप देखिए जो चंद्रमा है वो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ये डायरेक्टली हमारे माइंड से रिलेटेड है। अब हम सुबह कई बार उठते हैं बड़े उदास या डिप्रेस्ड होते हैं 1-2 घंटे, 4 घंटे या 1-2 दिन के बाद हमारा मन ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पोज़ीशन के हिसाब से और चंद्रमा जो है वो 27 नक्षत्रों में हर रोज़ 1 दिन एक-एक नक्षत्र में जा रहा है। 27 दिनों में चंद्रमा अपना पूरा अपना इसका यूनिवर्स का चक्कर लगा लेता है। और क्या होता है कि चंद्रमा जब जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का प्रभाव हमारे जीवन में दिखेगा। तो इसके लिए ये रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है और ये हमारे साथ चलता रहता है। और दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एक बार फिर कह दूं, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ गाइड। it does not change any it cannot change our life pattern. It cannot change anything else. It has just the way it is. We can't change it. We have to move on like this. So the very important factor is uh, important is that we have to live according to this.
और परमात्मा से शक्ति मांगे, कभी दुख हो तो उसका सहारा ले और अवलंबन ले और मंत्रों का सहारा ले। ये सब मेरी एक निचोड़ है जिससे कि हम एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और जो होना है वो तो होके रहना है, इसके लिए उसकी चिंता मत कर। ईश्वर ने कहा है कि अपना पास्ट इज अ मिस्ट्री एंड फ्यूचर इज अ हिस्ट्री, सो लिव इन द प्रेजेंट। यहाँ क्या होता है, अपने पुरानी यादों को सोच के उनको बातों को याद करके मन खराब कर लेते हैं या भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता करके हम प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रेजेंट में जीने के लिए हमें जो है प्राणायाम का, योग का सहारा लेना चाहिए। अपने मन को ज़्यादा व्यथित नहीं होने देना चाहिए, मन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। तो यही सब मैं आपसे आज बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें पसंद आई होंगी और एक बात है, मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बाकी ये मेरा अपना एक बाय वर्च्यू ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस इन द जर्नी ऑफ लाइफ, आई हैव शेयर्ड सम एक्सपीरियंसेस which I am sure you would have liked it. Thank you very much. Thank you, everybody. थैंक यू सो मच सर, इतने आसान और इतने सरल तरीके से इस टॉपिक के बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला एंड हमें इस सेशन में ज्वाइन किया। द डिवाइन ग्रेस आप सभी के लिए ऐसे और भी सेशंस लाता रहेगा और उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आप सभी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। जो भी मेरे मित्र यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में नए हैं उनको इस नॉलेज के टूवर्ड्स इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा और जो भी मेरे मित्र यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पहले से जानते हैं उनकी नॉलेज में हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहा होगा। अगर आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं और आगे भी आने वाले वर्कशॉप्स और वेबिनार्स की डिटेल्स एंड रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप सभी से अनुरोध है, जो स्क्रीन पे आपके पास नंबर डिस्प्ले हो रहा है, एक बार मैं नंबर बता देती हूँ, +91 8130283244। इस नंबर पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, जो भी आपका नाम है आप बस मैसेज कर दीजिएगा और हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे और आने वाले सभी वर्कशॉप्स, वेबिनार्स जो भी हम कंडक्ट करेंगे उसकी आपके पास अपडेट्स एंड डिटेल्स पहुंच जाएंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर एन इंट्रीगिंग प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच एवरी पार्टिसिपेंट फॉर अटेंडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर देंगे। थैंक यू सर। Thank you, Prachi. आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार चैट कॉलम में आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें। आपको हमारा सेशन आज का कैसा लगा? आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम आगे भी इम्प्रूव कर सकें। और जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको जो है अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। आप हमसे हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं एंड संपर्क कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।